Okay. Uh, Now we are going to study some important compounds of boron, like borax, diborane, boric acid. Then we move on in organic chemistry. Let's start. Okay. The heading is compounds of boron. Compounds of boron. Compounds of boron. The first compound, there is no first and second. Each one have their individual identity. The first we are going to study the compound of boron. We are going to study the first compound of boron. हम पढ़ने जा रहे हैं पहला, that is borax. Na2B4O7 and H2O. It is in decahydrate form. It is not a right chemical formula. Is it? Yes, sir. 10H2 हटिया है शायद. नहीं. H2 बताइए. 10 हट जाएगा सर. It is a combined formula of the all atoms present in the formula of borax. The actual formula of borax is Na2B4O5 OH whole 4 882. This is a correct formula of borax. This can be explained on the basis of its structure. You may count the number of atoms present in both formula are equal. So this upper one is valid for some. Yes, both are correct, but actual formula is below one. The upper one is the combined formula. It is satisfying or not? Yes, in generally, anyone tells about the formula of borax, the one is known, but the actual form of borax is below one. This is not unknown species, it is a known one, but generally the above one is known by everyone. Both of Sir, them what are. its chemical formula? Yes, Ankit. Both of them are important formula. Yes, both of. Sir, what is its chemical formula? Both are its chemical formula. Sorry, chemical name. बताते हैं. Borax and are you kidding me? Number of atoms in both formula is sodium 2, boron 4, we count about oxygen 7 or 10, 17, 5 and 4, 9 or 8, 17. Number of hydrogen is 20, 16 and 4, 20. That means both the formula in terms of number of atoms are same, but structure wise both are different. ठीक है? It is a general formula, consists all the atoms. It is a structural formula. The formula is valid
both are valid, but it is actual. This can be explained on the basis of its structure. On the basis of above one, what is the name of chemical name of borax? तो देखिए, the name of borax is sodium sodium borate decahydrate. Sodium borate decahydrate. Sodium tetraborate decahydrate. Sodium tetraborate decahydrate. Sodium tetraborate decahydrate. Tetra is important. हाँ, tetra, yes, tetra is important. Sodium tetraborate decahydrate. What is the Hindi name of borax? Suhaga. Suhaga is the Hindi name of borax. Generally used for soldering of ornaments of gold. टाका, टाका लगाने के लिए यूज होता है. बोरेक्स Na2B4O7.10H2. सोडियम टेट्राबोरेट decahydrate. Everyone try to speak in its own comfortable language. There is no need to speak in English or Hindi. You may speak in any language. Take some time to get comfortable. Preparation method of borax. Preparation method of borax. Preparation method of borax. First one is from tinkle. Tinkle is the one type of mineral, or you may say ore. Tinkle is a one type of ore, naturally occurring ore है. Tinkle is the form of naturally occurring borax. Tinkle is the form of naturally occurring borax. Tinkle is the form of naturally occurring borax. Tinkle is the form, कहाँ पर? From tinkle से. अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे में आप लोग को समझ में नहीं आएगा. धीरे धीरे करके आप और हम कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है. धीरे धीरे करके आप भी कोशिश करिए, हम भी करिए, है ना. लैंग्वेज सभी खूबसूरत होती है, लेकिन जब हम आगे जाके कंफर्टेबल होंगे, इससे अच्छा अभी से ट्राई करें. तो मैक्सिमम कोशिश करना. आप लोगों की तरफ से ज़्यादा चाहिए, हमारी तरफ से कम चाहिए. रीजन सिंपल सा है, हमें आपको पढ़ाना है तो हमें यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना. तो कोशिश करिएगा. आई विल ऑल्सो ट्राई.
फ्रॉम टिंकल, टिंकल इज द फॉर्म, रूप है ऑफ नेचुरली अकरिंग बोरेक्स। टिंकल एक प्राकृतिक रूप है जिसमें बोरेक्स पाया जाता है, लेकिन 100% बोरेक्स नहीं पाया जाता है। इट कंसिस्ट अराउंड 50% बोरेक्स। फिर इससे बोरेक्स को निकाला जाता है। तो टिंकल इज द फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग बोरेक्स कंसिस्ट about 50% बोरेक्स। इसमें लगभग 50% बोरेक्स होता है। फ्रॉम टिंकल वी कैन एक्सट्रैक्ट बोरेक्स बाय सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थी, सिलीसियस, क्ले, सैंड, मैनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। बस इसमें कुछ है, इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता टिंकल का, एक नेचुरली अकरिंग फॉर्म होता है बोरेक्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली अकरिंग बोरेक्स को टिंकल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 50% is minimum or maximum? नहीं, ये एवरेज अमाउंट। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कोलोमिनाइट ओर, कोलिमेनाइट ओर, फ्रॉम कोलिमेनाइट ओर, फ्रॉम कोलिमेनाइट ओर, फ्रॉम कोलिमेनाइट ओर। The formula of colemenite ore is Ca2B6O11. In hydrated form, 0.5 or 2 is also present in the formula. जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन इट इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कोलिमेनाइट। रेक्ट बिट सोडियम कार्बोनेट and form borax. This is colemenite. अब देखिए, हम बोरेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो सीधे लिख दीजिए। एनहाइड्रस फॉर्म में बनेगा बोरेक्स, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। द बोरेक्स विल बी फॉर्म इज इन द एनहाइड्रस फॉर्म Na2B4O7। ये आपका बोरेक्स बन गया। It left in moisture and become borax. Yes. नहीं, it is also a borax. Anhydrous borax, that is hydrated borax. Hydrous borax. देखिए, 4 बी सोडियम में से 2 सोडियम तो चले गए, बोरेक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2Ca है और 2 क्या है, CO3, तो 2CaCO3, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक बच्चों यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला बनेगा जो आप लोगों को याद कर लेना है, वो है सोडियम मेटाबोरेट। कितने सोडियम बचे हैं अभी, 2, और कितने बी बचे हैं अभी, 2 चेक करिए, और O बचे हैं 2। देखिए 4Na में से 2Na बचे, वहाँ चले गए, 2 बचे हैं। 6B में से 4B यहाँ के 2 अभी भी बचे हैं। ऑक्सीजन 11 है, 11 में से 7 वहाँ चले गई, 4 अभी भी बचे हैं। दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। अब देखिए, जो सोडियम मेटाबोरेट बना है ना, इससे फर्दर बोरेक्स बनाया जा सकता है। What was Oxygen. balance? Oxygen balance. Well, if you are making that हाँ, from sodium metaborate, from sodium metaborate if we are making borax, then oxygen are not satisfying. satisfying. Count 2CO3, 2CO3, ठीक है। No, sir. हाँ, You tell now that we can also make borax from 2NaBO2. in other reaction, in separate reaction.
we can form borax from sodium metaborate in separate way, not in the reaction. Okay. सोडियम मेटाबोरेट, तो रिकवरी, ये रिकवरी कर रहे हैं हम, रिकवरी. एवरीवन ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट. देखो ऐसे ऐसे कोशिश करो आप लोग, क्या ना, टोटल तो नहीं बोला जाएगा अभी, हैबिट नहीं आती सबको है, आप लोगों को हैबिट नहीं है मैं बोलने की, तो बोले बीच में जहाँ ना बोला जाए उसे हिंदी बोल दो. धीरे धीरे करके स्पीक करो, धीरे धीरे करके. अब हम देख रहे हैं कि 2-3 लोग बोल रहे हैं, एक प्रांजल हो गया, एक खाना हो गया, थोड़ा सा अंकित ने बोला. English leader. लीडर इज साइलेंट. अच्छा, you have any doubt? You haven't have any doubt? Okay. Nancy, is there any problem? You have to speak. Yes, sir. You have any doubt to speak? No, sir. No, sir. बच्चों बोलना पड़ेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बोलो, हल्का हल्का सा आ जाएगा सबका. आपके साथ हमारी भी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. देखिए हमने यहाँ पर 4NaBO2 क्यों लिए, कोई सेंस बता सकता है? क्योंकि हम बोरेक्स बनाना है तो उसमें कितने सोडियम लगेंगे? बोरोन 4 लगेंगे ना. सोडियम तो 2 ही लगेंगे, लेकिन बोरोन तो 4 लगेंगे ना. और इसमें आपको पास कर देनी है CO2 गैस. इससे रिकवरी कर रहे हैं बोरेक्स की. बोरेक्स आप चाहो तो इस रिएक्शन इसको याद कर सकते हो. ये तो देखिए बना दीजिए Na2B4O7. ये फिर से हमारा बोरेक्स बन गया. रिकवरी कर ली हमने. जो वेस्ट जा रहा था हमारा सोडियम एंड बोरोन वेस्ट जा रहा था. हालांकि सोडियम मेटाबोरेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. हाँ, एनहाइड्रस फॉर्म. मोस्टली द कंपाउंड इज फॉर्म इज इन द एनहाइड्रस फॉर्म, देन दे गेट हाइड्रेटेड. अब देखो कितने Na बचे यहाँ पर? 2. तो Na2, CO2 यहाँ से बचा, और 4 या 8 ऑक्सीजन में 7 तो यहाँ लग गए. तो CO2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो CO3. ठीक. दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स. सेकेंड मतलब फर्स्ट टिंकल थी, सेकेंड फ्रॉम कोलिमेनाइट. तो हमने कोलिमेनाइट से बोरेक्स बनाया, और टिंकल तो नेचुरली अकरिंग बोरेक्स कहलाता है. तो ये मेथड है आपकी. ये सेकेंड जो की ना, ये रिकवरी मेथड थी. Sir, how to separate these two compounds? They are separated itself or themselves. One is sodium carbonate get precipitated in the bottom of the container, है ना. What is the chemical formula of tinkle? Tinkle is the naturally occurring. There is no such formula of the compound. It has complex formula. कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसा मान लो कि अभी इसका कोई वैसा जनरलाइज फार्मूला नहीं आया कि इसमें कितना क्या होता है, तो वैसा फार्मूला नहीं है उसका. थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम बोरिक एसिड. फ्रॉम बोरिक एसिड. फ्रॉम बोरिक एसिड. जिसको भी बच्चों डाउट हो ना पूछ लेना. हमने कह तो दिया जिसको जैसे पूछना हो वैसे पूछो, कोई ज़रूरी थोड़ी है. जिस लैंग्वेज में सबको पूरी छूट है. फिर से आप लोग जैसे कल पढ़ते थे वैसे ही आ जाओ वापस, लेकिन जो कि बोलना चाहे तो बोल सकता है. फ्रॉम बोरिक एसिड. ठीक है. तो देखिए बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? 3BO3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड. अब हम यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाएं कि बोरेक्स में कितने बी चाहिए? 4. तो हमें इतने कितने बोरिक एसिड लेने हैं, है ना. और इसकी रिएक्शन करा देनी है Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से. बना लीजिए.
क्या बन गया? Na2B4O7 बोरेक्स बन गया। बोरेक्स 3 4 जा 12, 12 मतलब कितना हाइड्रोजन? H2, 6 H2, ये निकल गया 6 H2O। Na2 निकल गया, B4 निकल गए, 6 H2O पूरे हाइड्रोजन निकल गए। अब ऑक्सीजन काउंट करो टोटल, 7 और 6 13 ऑक्सीजन वहाँ पर है, और यहाँ कितनी है? CO2 will form. 3 4 जा 12, 15, और निकल कितनी गई हमारी? 13. तो एक C बचा और 2 O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एनोदर मेथड टू फॉर्म बोरेक्स। ये बोरेक्स बनाने की अलग विधि है, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बोरिक एसिड। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। These reactions we have to by heart or there is some another trick identity? There is no identification of the methods, you have to learn or remember. Revise again and again to become perfect in writing of equation. क्या है ना सोम, अभी तो बहुत कुछ ही आई हैं। When we studied a chemical reaction in organic chemistry, there are number of reaction and number of conversion. धीरे धीरे करके रिवीजन करके हमें कमांड लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बनारस में एक लड़का है पुष्पेंद्र यादव, वो हर 7 दिन में इतनी मोटी रब भर देता है रिवाइज कर करके। हमने उससे कहा कि तुम हर 7 दिन में भर देते हो, तो इससे अच्छा तुम एक वाइट बोर्ड ले लो छोटा सा, उसमें लिखो मिटाओ। बोले सर उसमें मज़ा नहीं आता, इतना रिवीजन करता है, पैसे वाली कितना जाएगा पैसा। और वैसे नहीं भरता रहा, वेस्ट नहीं करता, एक एक कोना यूज करता है यहाँ से, और लिखता रिवीजन वाली की बात कर रहे हैं हम। बाकी फिर तो ऐसे ही जैसे आप बनाते हो रिवी, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक एक चीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे यहाँ के बच्चा एक ही टैया कॉफ़ी नहीं भरी, पूरे साल हो गई। I am writing it very small. ओके 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 ओके, चलिए ओके। Physical properties of borax? यस यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। लुक्स लाइक अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, है ना, अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब फाइन पाउडर ऑफ बोरेक्स, जैसे कि मैदा होता है ना, मैदे को जैसे आप छूते हो वैसा ही चिकना चिकना सा लगेगा बहुत। अगर पतला पाउडर देख लोगे आप इसका, तो इन टच लाइक, और मैदा को हमें नहीं पता। All purpose flour. हाँ, It is combustible. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंबस्टिबल नहीं है, मेल्ट हो जाता है। सेकेंड लिखिए, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, स्पेरिंगली या स्लाइटली लिख सकते हो, पार्सली। स्पेरिंगली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, बट हाईली सॉल्यूबल या फेयरली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर,
आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सेकेंड डिसोसिएशन भी बढ़ता है आपका। बट फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ए हॉट वाटर। हॉट वाटर। अब हम आपको बता रहे हैं बोरेक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आती हैं, मतलब है तो पूरा ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट है बोरेक्स बीट टेस्ट, अ वेरी वेरी फेमस टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बोरेक्स बीट टेस्ट। सेकेंड, इसकी स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। Which test? बोरेक्स बीड टेस्ट। बीड इट्स लाइक अ सेमी सॉलिड मटेरियल, मेल्ट ग्लास, पिघला हुआ कांच, ऐसी बीड होती है आपकी, WEET. BEAT, बीड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्प्रिंगली soluble in cold water but fairly soluble in hot water। डाली हेडिंग केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विद वाटर और इफेक्ट ऑफ वाटर और ट्रीटमेंट विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर और ट्रीटमेंट विथ वाटर और इफेक्ट ऑफ वाटर, जो आप लिखना चाहे। हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हो आप। जल अपघटन, देखो पानी के द्वारा किसी चीज को तोड़ना कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, और पानी का जोड़ना कहलाता है हाइड्रेशन, है ना। तो जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है ना, वो एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन मतलब बेसिक, इसका रीजन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो लिखिए रिएक्शन विथ वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो लिखिए इट्स aqueous solution, its aqueous solution is alkaline, its aqueous solution is alkaline, that means basic, its aqueous solution alkaline, that means basic, due to the formation of strong base, due to the formation of strong base, its aqueous solution is alkaline due to the formation of strong base। जलीय विलयन जो होता है इसका, जल में जब इसको घोला जाता है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, व्हेन इट गेट्स हाइड्रोलाइज देन द सॉल्यूशन इज फॉर्म, इट इज बेसिक इन नेचर। इसका कारण जो बताया गया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और वीक एसिड बनता है। तो देखिए कई तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस शो कर सकते हैं। तो जो फेवरेट मेथड है वो हम कर देते हैं Na2O4O7, और यहाँ पर डेका हाइड्रेटेड फॉर्म में हम ले लेते हैं इसको, और इसको पानी में घोल देते हैं। ठीक है, वाटर में घोल देंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4 बनेगा बोरिक एसिड, 4H3BO3 बोरिक एसिड। बताइए इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक एसिड हम पहले ही थे। प्लस NaOH कितने बनेंगे, कैसे पता किया हमने, बोरेक्स में कितने, है ना। तो ये बोरेक्स बोरिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और दिस इज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि